Hello everyone, I welcome you all in today's class. So as we have finished ninth question of exercise 5.3, the same exercise I'm going to continue today from question number 10. Okay. See, your question number 10th and question number 11. Both are quite similar and quite different. Okay, so you need to understand over here. See, when an is given and when Sn is given, you should know the difference between these two questions. If an is given, by putting the value of n you will be getting the ap directly. Okay, but if Sn is given, here first of all you will find the sum, then you will find the an, and then you can find the ap. मतलब अभी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी एकदम सिंपल शॉर्ट में समझाते हैं कि आपको इतना याद रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है. बस सिमिलैरिटी ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया होगा. ओके, देयर विल बी वन स्ट्रक्चर दैट विल बी गिवन फॉर यू, बट दैट स्ट्रक्चर इज एंटायरली डिफरेंट. ओके, from that structure, in the case of an you can get the ap directly. Okay, but if Sn is given and the structure is given in Sn, there are two steps we need to follow. Understood? So see, let's move on with the question 10. I'm taking any one part. Okay, two parts are given. I'm taking the first part over here, that an equals to given 3 plus 4n, and find the sum of first 15 terms. S15 हमको फाइंड आउट जो करना है वो है S15. ये अभी बिल्कुल ध्यान से समझिए. ये an है. ठीक है, an मतलब क्या होता है? nth टर्म. ठीक है, सो nth टर्म या तो आपको डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया होता है, else the structure will be given. ठीक है, आपको कोई स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग आप एपी बना लो. फाइन. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम n की वैल्यू रखना चाहेंगे 1 2 3. माय क्वेश्चन इज व्हाई आई एम बिगिनिंग विथ 1. कांट आई बिगिन विथ 0 और माइनस? So its answer will be no. I can't begin with 0. I can't begin with even minus also. The reason is n means the place value. Place value cannot be in 0 and cannot be in negative also. ठीक है, हम कभी नहीं बोलते कि आपकी जीरोथ पोजीशन आई. ठीक है, so that's why we'll take these three terms, and these three are more than sufficient. आपको हर बार ही यही करना है ना, n की वैल्यू 3 तक ही लेना है, 3 से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, तो an अभी n की जगह 1 रखें तो a1 आपका क्या होगा? यहाँ देखो 3 प्लस n की जगह पे 1 रखोगे आप, इट विल बी लाइक दिस, एंड a1 यू गेट 7. जो आपके पास वैल्यू आ रही है. ठीक है, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना लेंथी नहीं करेंगे. तो a2 आपको यूज करना है, 2 आएगा, सो 8 प्लस 3 11. दिस इज a2. a3 if you find, so it's 12 plus 3 15. Now clear cut idea you have, the AP is 7 11 50. That means common difference आपको भी क्या मिल गया? Common difference मिल गया 4. ठीक है, common difference आपको मिल गया plus 4. Any of the two term you can take and you can subtract. So 11 minus 7 is also 4. 15 minus 11 is also 4. Common difference you get. अब हमको चाहिए A15. तो क्या क्या है आपके पास? Common difference you have A, you have 7 and is 15. Okay, S15 can be written as 15 by 2 twice of A plus n minus 1. That means 14. B is given 4. 15 by 2 inside the bracket. 14 plus how much? 28 to the 56, isn't it? So 15 and it will be 70 by 2, that means 35. Okay, now please multiply 15 5 ja.
ये आपके पास कैसे हुआ, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 15/2 इट्स 70, ठीक है, ये यहाँ से आया था और ये आपके पास हुआ 35। अब आपके पास हो गया 15 × 35 एंड नाउ यू कैन यहाँ लिख देते हैं, आपका S15 हो गया the value of its question number 10th na. Okay, so the value of first question that is being asked is 500, okay 25, sorry है ना, ये आपका होगा 15 5 just 75, 5 carry 7 and 15 3 just 45, 45 plus 7 is 52. Okay, so it's S15 is 525 which is your answer. अभी आपको एक बार फिर से समझना है इसको, कोई स्ट्रक्चर अगर आपको दिया है एपी नहीं दिया तो पहले आप वहां से एपी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n till 3 beginning from 1 to 3. So 1 2 3 you use the value, find the AP. After finding AP you will get A, you will get D, you will get D and A and n is already given, ठीक है, n आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा. Use the formula and find its answers. Its second part is in homework. I'm just shifting to question next, that is 11th. Question, okay. If the sum of first n term of an AP is so first sum of first n terms of an AP Sn equals to given 4n minus n square. अभी देखो यहाँ पास बहुत सारी चीजें इन पार्ट में पूछी गई है ना, कि बहुत सारे पार्ट इसमें है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो जो 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 भी हमको फाइंड आउट करना लिख लेते हैं, है ना. ए, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट मींस वी कैन से S2. देन what is the second term, that means A2. After this similarly find the third and 10th term. आपको find out करना है A3 A10, no issue. And then last is nth term. कर लेते हैं an. इतना सारा सब कुछ आपसे पूछा गया है, ठीक है, 1 by 1 उसको निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो अभी हमने बताया कि अगर an गिवन है ना, an गिवन है और sn गिवन है तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है. और वो फर्क क्या है कि जब हमने अभी an की बात की थी तो वहां पर आपके पास आंसर तुरंत आ रहा था, तुरंत मतलब आपको AP नहीं था लेकिन AP बहुत जल्दी आपके पास आ रहा था. यहाँ पर sn से पहले आप an पर आएंगे फिर an से आपके पास AP आएगा, मतलब एक स्टेप आपका इंक्रीज हो जाता है. ओके, नाउ sn, ठीक है, अभी n की जगह पे हमने बोला कि 1 2 और 3, अगर 3 वैल्यूज आप पुट अप कर रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, इफ आई टेक S1, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है. S1 अगर हम लें तो 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 3, कोई इशू नहीं है. अब S1 का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अभी फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होता है ना, ठीक है. तो आपका S1 इज इक्विवेलेंट टू 8. अंडरस्टूड, तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया. दिस इज योर फर्स्ट टर्म. बट नेक्स्ट S2, S2 मीन्स n की जगह पे भी आपको 2 पुट करना है. सो 8 minus 4, S2 आया 4, ठीक है. अब S2 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. सो A1 या फिर आपको A प्लस A2, ये आपके पास आ गया A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4. A की वैल्यू आपको 3 दिया है तो यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो ये हो गया 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 4. तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1. समझ आया. S2 आपका आया था 4, सेकेंड फर्स्ट आंसर आ गया, सेकेंड आंसर आ गया 4, A2 की वैल्यू आ गई आपकी 1. नाउ A3, ठीक, अभी हम लिखते हैं S3.
S3 मीन्स यहाँ पर 3 पुट करना है. So 4 3 या 12 and 3 square 9, 12 3. क्लियर हुआ? अब S3 माने क्या होता है? S3 माने होता है आपका A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होता है ना. ठीक है, तो A1 प्लस A2, S2 आपको कितना दिया था? 4 दिया हुआ था. ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 4 प्लस A3 इक्वल्स टू 3. A3 आपका आ गया -1. गॉट इट? तो A3 भी आपका आ गया कितना? -1. अब चलो इतना बहुत है. अब आपके पास देखो A1 है. ठीक है, AP I'm gonna write, AP लिखते हैं अभी. ठीक है, AP फर्स्ट टर्म क्या था? वेयर इज A? या 3. ठीक है, A2 है 1. A2 आपका 1 है. A3 आपका -1 है. मोर देन सफिशिएंट. समझ पा रहे हैं कि EP कैसी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ओके, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपका? -2. क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको जब SN दिया होता है तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है. पहले आप SN से S1 S2 S3 तक निकालोगे. अब इन्हीं S1 S2 S3 का कंपैरिजन आप करोगे A1 A2 और A3 से. ठीक है, उनसे कंपेयर करने के बाद यू गेट द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3. And after getting the value of A1, A2 and A3, you'll get the AP or the common difference. ठीक है, common difference मिल जाता है, first term मिल जाता है. That means you are knowing the whole AP. Okay. So already we have. Now we want A10 and AN. Okay. So no issue. We'll write over here A10 है ना. A10 can be written as A plus 9D. Okay, A is how much? 3 plus 9. B is how much? -2. So it will be -18 and it's -15. Okay, A10 की आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी? -15. and next what remain? AN. AN equals to A plus n minus 1 into B. Put up the value, so it will be A plus n we don't know, minus D is the value of, okay, -2 is the value of D. So 3 and directly you can multiply plus 2. So AN that we will get is 5 minus 2. This is your answer. Means the last answer, that is here. Fine. And here you can just finish it up. All the values we have find, and it's not that much difficult, but yes, a bit kind of problem you will be facing if you solve the next question. है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं. एटलीस्ट 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन RD शर्मा और इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो. तो आप वो एग्जाम्पल और RD शर्मा के क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे. The next question is your question number 12. Question 12. Okay. See question number 12, 13, 14 and 15. ठीक है, 15 तक ही करते हैं अभी. तो 12, 13 और 14 देखते हैं. इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन चल के आते, हिंट देते हैं. चलो हिंट लेते हैं इन क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2. तो पहले आप AP लिखो. यहाँ पर AP आपके पास हो गया 6, 12. अच्छा देखो, फर्स्ट 40 टर्म्स बोल रहा है, तो आपके पास लास्ट टर्म क्या होगा? इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 6, इट विल बी 240. Okay, 240 will be the last term. So you have A, you have AN and you have D. ठीक है, आपके पास A equals to 6 हो गया. ठीक है, AN equals to 240 हो गया and D equals to हो गया 6. क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी आपका 6 ही होगा. डिविजिबल बाय 6, दैट मींस इट विल बी 6. तो अब आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स बताना है. N equals to 40 है. सारे चीजें आपको दिया है, आप जो भी फॉर्मूला चाहो वो फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू पुट अप करो, आंसर निकालो.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। सेम थिंग, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एपी लिखना है। पहले एपी लिखने के बाद आपको जो है क्वेश्चन का AS15 निकाल देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इन होमवर्क। क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अभी देखो, ये क्वेश्चन के लिए हमने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, and the formula is for odd numbers the sum of n odd numbers is n square। okay, तो 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे, सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर आपको ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है तो एकदम सिंपल है कि 0 to 50 आपके पास 25 क्या हुए 25 ऑड नंबर्स हुए, और अगर 25 ऑड नंबर्स हैं तो n इक्वल्स टू हो गया 25 और सम ऑफ n हो गया कितना 625। ये हो गया आपका 1 लाइन आंसर, ठीक है। आपको 1 लाइन में आंसर हो गया कि अगर 0 to 50 बात कर रहे हैं तो हाफ विल बी द ऑड नंबर्स एंड हाफ विल बी द इवन नंबर्स। तो आपके पास 25 ऑड नंबर्स हो गए। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फॉर्मूला n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर हो गया 625। यहाँ पर ही कोई आपसे पूछ लेता कि इवन नंबर्स का क्या है, तो आपका हो जाता है 25 इंटू 26, ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1। सो इट इज एज सिंपल एज you know, I know, okay, fine। So you can do, its answer is 625। else if you want you can write 0 to till 50, or sorry it's odd, so it will be 1 3 5 and all, last will be the 49, and then you can put the value in the formula, okay। Now see 15 16 and 17, these 3 questions are word problems, okay, and word problems are like what, जो देखने में बहुत ज्यादा टफ लगते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, है ना। एंड आई टोल्ड यू दैट वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स द यूजेज ऑफ और द एप्लीकेशन ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी अगर हमको वर्ड प्रॉब्लम करना है किसका, एपी का, तो ये क्या हो गया एप्लीकेशन ऑफ एपी। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं क्वेश्चन 15 इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू हैव द बुक प्लीज सी ये क्वेश्चन बिकॉज इट्स क्वाइट लेंथी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज plenty of a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second, and in this manner 300 for the third, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day, how much money of the construction has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days, okay। This is the application, okay, application of AP। It's question 15। क्या हो रहा है समझो, किसी पर पेनाल्टी लग रही है ना, पेनाल्टी लग रहा है कि आप अगर इस काम को, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है जिसको आप जितना डिले करोगे उतना आपको पेनाल्टी लगेगी। अगर आपने एक दिन डिले किया, मतलब एक दिन अगर आप उस काम को और आगे बढ़ाते, सपोज आई टोल्ड द पीपल ऑफ लीव नॉट आई, एनीवन, ठीक है, कोई भी है जिसके यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उन्होंने बोला कि आप को जो काम है वो मंडे तक करके देना। अभी वो बोल रहे हैं कि मंडे के बाद अगर आप कभी भी करते हो, ट्यूसडे थर्सडे ऐसे समथिंग लाइक, तो आपको एज पर द डे पेनाल्टी जो है आपको लगेगा, पैसा आपको लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने एक दिन उसको डिले किया तो आपको 200 देना है, और किया तो 250 देना है। मतलब फर्स्ट आपका क्या हो गया, एक जो डिसाइड किया उन्होंने, it is rupees 200, okay। the next is 250। तो अभी आपको जो AP अगर हम लिखें तो AP कुछ इस तरीके से होगा 200 250 300 एंड सो ऑन, फाइन। तो यहाँ से आपको अपने आप ही मिल रहा है A equals to 200, D equals to 50 एंड what else, N बोल रहा है कितने दिनों की बात हो रही है, 30 डेज, है ना, 30 डेज की बात हो रही है। यहाँ तक
जो है 30 डेज तक आपको बताना है कि अगर वो 30 डेज तक जो है डिले कर देता है तो उसको कितनी पेनाल्टी देना पड़ेगा। सब कुछ हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, S30। तो S30 की वैल्यू हो गई 15। समझ पा रहे हैं 15 कैसे आया, twice of 200 plus n minus 1, directly I can write into 50. Fine. So 15 inside the bracket 400 plus okay, it's 15 and fine, and then you can multiply। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो है ओके 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 जा 75, ओके 5 carry 7 and this man 200 it will be 120, ठीक है 7 and then 15 you can add like आपके पास आंसर आएगा 200 सॉरी 27,750। this will be the answer, find the answer that will be left। So here we have finished question number 15. Now one more question. I'm not solving, but I'm giving no. Can I give you a homework? एक्सप्लेन कर देते हैं, आप उसको करने की कोशिश करना है ना। क्वेश्चन 16 इज द सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। क्या हो रहा है कि 700 रुपए है ना, 700 rupees is being distributed among 7 students। ओके 7 कैश प्राइजेस जो हैं, 7 स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें कितना पैसा दे रहे हैं, हमें 700 दे रहे हैं, और उनमें एक कंडीशन हमने बताई है दैट एवरी प्राइज इज 20 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, है ना। जैसे आप अभी जो लास्ट प्राइज होगा और सेकेंड लास्ट होगा, या फर्स्ट और सेकेंड प्राइज जो होगा, उन दोनों में कितने रुपीज का अंतर होगा, 20 रुपीज का अंतर होगा। तो आपके पास एस एन जो दिया है वो दिया है 700, डी दिया हुआ है 20, अंडरस्टूड, एन दिया हुआ है 7। तो अब आप समझ सकते हो कि आपको क्या निकालना है, ए निकालना, ठीक है। और ए निकालने के बाद आपको 7 प्राइजेस लिखना है, ठीक है। तो आप मतलब एपी लिखना है, सीधी सी बात ये है कि आपके पास ए होगा, डी आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको एपी लिखना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको आपको सॉल्व करना है। We'll take from 17 to 17, 18, 19, 20 last 4 questions in the next class। Thank you so much।